बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Most welcome to all parents and students in the second video section of first semester. This is class 6 and this is week number 2 and video number 1 and the period is ICT. In this semester we have started with third chapter, that is advanced feature of Excel 2013. In this chapter we have already started in physical classes. Now I will give you some brief introduction about this chapter. In this chapter we have learned about some advanced features of Excel. First of all, we know about what is feature. Feature is a distinctive attribute or aspect of something. In simple words, feature is just a characteristics which we are using in Excel 2013. 2013 is a version of Excel which we are using. Now open your book and going to page number 28. On this particular page, Excel 2013 has the facility to fill a data series automatically using a autofill feature. Excel 2013 से हमें यह फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं by using autofill features. Some of the features which we are using is autofill, flash fill, sorting, filtering, also a conditional formatting. Once you have entered data in a worksheet, you can also change its order of appearance. When जब आप लोग अपना डेटा जो है फिट करेंगे अपनी एक्सेल वर्कशीट में, so आप उसकी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाती है? सॉर्टिंग. सॉर्टिंग के ज़रिए से आप अपने डेटा की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. व्हेन वी आर यूजिंग फिल्टर डेटा विच सेलेक्टिवली ब्लॉक्स डेटा यू डोंट वांट टू सी. फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा डेटा आप लोगों ने फिट किया अपनी एक्सेल वर्कशीट में जो आप लोग नहीं चाहते कि वो आपको नज़र आए, आप उसे हाइड करना चाहते हैं, आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फिल्टरिंग फीचर ऑफ एक्सेल. First of all, we know about the basic worksheet of Excel. As you all are already know, Excel worksheet depends on the number of columns. These are the number of columns and number of rows. These are the number of rows. Multiple number of columns and multiple number of rows are using. Columns are represented by alphabets such as A, B, C, D and so on. Also, number of rows are represented by numbers such as A1, 2, 3, 4 and so on. The intersection of column and row are called cells. These are the cells. These all are the cells. Excel worksheet depends on the multiple number of cells. And in worksheet, all cells are represented by a name such as this cell's name is B1 and this is C1. Like कॉलम और रॉ से मिलके बनता है आपके सेल का नेम. सच एज इस सेल का नेम क्या है आपके पास? D3. Now move on the page number 28. Sorting and filtering are very useful when you work with long data list. Sorting और filtering आपके पास कब यूजफुल है? जब आप लॉन्ग डेटा पे वर्क करते हैं. आपके पास ये जो वर्कशीट है ये जब भी ज़्यादा यूजफुल है जब आप लॉन्ग डेटा पे वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का डेटा है, किसी ऑफिस का डेटा है, एम्प्लॉयज़ के जो डेटा है आपके पास,
अगर आप मैनुअली उसे टाइप करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके अंदर आपको फीचर्स जो ऐड करने हैं मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये आपके लिए यूजफुल वर्कशीट है जब आप लॉन्ग डेटा पे वर्क करते हैं। एक्सेल 2013 हैज़ ऑल्सो अ फीचर कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग दैट सेट्स अ सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट यू स्पेसिफाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपके पास एक फीचर है एक्सेल में, जो कब यूजफुल है, जब आप अपने डेटा को अपनी मर्जी अपनी अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर रहे हैं। अपनी मर्जी से भी आप इसको सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस एडवांस फीचर। First feature is autofill. Autofill feature of Excel allows you to fill a range of cells with a series of data without actual typing in it. Autofill feature के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स की रेंज को, या आपके सेल की रेंज है इसको आप फिल कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग। टाइपिंग करने में आप लोग को ज़्यादा टाइम यूज होता है। फर्स्ट फीचर आपका क्या है, ऑटोफिल। As this name showed, auto means automatically. Automatically आप ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं अपने डेटा को। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सेट में मैंने लिखा संडे, and I want to fill the rest of the cells with the days of the week like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। मैनुअली अगर मैं इसको टाइप करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बट मैंने यहाँ सेल B1 के अंदर क्या लिखा, संडे। संडे लिखने के बाद मैं इस सेल को, इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करूंगी, क्लिक करके मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। देन यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लस का साइन जो है वो बना हुआ आ जाएगा ब्लैक कलर में। इस साइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग माउस, देन ड्रैग करूंगी मैं इसको इनक्लोज सेल्स तक। ड्रैग करने के बाद जब मैं माउस बटन रिलीज करूंगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेज ऑफ द वीक फिल हो जाएंगे लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे ये, क्योंकि ये जो डेज ऑफ द वीक है ये आपके पास डिफॉल्ट सेट होते हैं एक्सेल वर्कशीट की लाइब्रेरी के अंदर। डिफॉल्ट ये आपके पास सेट होते हैं। सो सिलेक्ट द सेल से B1 सेल को आपने सिलेक्ट किया, विच हैज द डेटा से द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे ऑफ द वीक लाइक संडे यहाँ पर सेट हुआ है। यू वॉन्ट टू फिल द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन द वर्कशीट, और आप क्या चाहते हैं, रेस्ट ऑफ द सेल को फिल करना चाहते हैं। मूव द कर्सर टू द स्मॉल ब्लैक स्क्वायर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पे, लोअर राइट कॉर्नर पे एक पॉजिटिव ब्लैक कलर का साइन बना हुआ आ जाएगा। दिस स्क्वायर इज कॉल्ड फिल हैंडल। ये वाला जो आपके पास साइन है ना, ये फिल हैंडल कहलाता है। When you point to the fill handle, the cursor changes to a plus sign. Drag it to enclose the area you want to fill. जो सेल्स को आप फिल करना चाहते हैं उस सेल्स को आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे वहां तक। ड्रैग करना लाइक इसको आप यूं सिलेक्ट करते हुए ड्रैग करते हुए आएंगे इनक्लोज सेल तक। रिलीज द माउस बटन, द सेल इनक्लोज्ड विल बी फिल्ड विद द डेज ऑफ द वीक। तो आपके जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे डेज ऑफ द वीक से ऑटोमेटिकली। Now move on the page number 30. You can also fill a cell range with a series of number. The steps that are type the first two values of the series into adjacent cell. इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने यहाँ पर डेज ऑफ द वीक फिल किए हैं एंड आई वॉन्ट कि मैं यहाँ पर इवन नंबर्स लिखूँ लाइक 2। अगर मैं यहाँ पर इवन नंबर लिखना चाह रही हूँ तो क्या मेरे 2 लिखने से यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, इवन नंबर फिल हो जाएंगे? नहीं। इस तरह से क्या होगा, ये आपका 2 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा रिमेनिंग सेल्स के अंदर। बट अगर मैं यहाँ पर इवन नंबर लिखना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे 2 सेल्स यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे लाइक 2
एंड सेकंड हमारा इवन नंबर होता है 4। तो 2 4 मैंने यहाँ पर लिखा। देन मैं ये 2 सेल्स अब सिलेक्ट करूंगी। ये 2 सेल सिलेक्ट करने के बाद जैसा हम लोग यहाँ डेज ऑफ द वीक में कर रहे थे, यहाँ पर इसी तरह से अपने 2 सेल सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे अपने रिक्वायर्ड सेल्स तक। जितने सेल्स तक हम इवन नंबर लिखना चाह रहे हैं वहां तक हम इसको ड्रैग करेंगे और रिलीज कर देंगे माउस बटन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इवन नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज कस्टम लिस्ट। You have seen that autofill can fill in names of the days of the week and the month in a year. ऑटोफिल फीचर के जरिए से आप नेम, डेज के नेम, ईयर्स के नेम, ये सब कुछ आप कर सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर लाइब्रेरी में डिफॉल्ट सेट होता है। दिस इज बिकॉज दिस लिस्ट आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन कस्टम लिस्ट। ये वाली जो चीजें ये आपके पास कस्टम लिस्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड है, इस वजह से आपको इसके लिए जस्ट एक वर्ड लिख रहे हैं आप और ये आपके पास सारे रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक लिखे हुए आ रहे हैं। यू कैन एड योर ओन लिस्ट टू द कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ओन लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिख लूँ, अपने जो भी मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि खाली अगर मैं यहाँ पर ICT लिखूँ तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए आ जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इसकी कस्टम लिस्ट की लाइब्रेरी में डिफॉल्ट सेट नहीं है। इसके लिए मुझे अपनी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये लिस्ट भी हम मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग कस्टम लिस्ट। देयर आर 2 ways टू ऐड अ लिस्ट। 2 वेज है हमारे पास लिस्ट को ऐड करने के, बाय इंपोर्टिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड बाय टाइपिंग द लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स। To import a list of items, do as follows. In a worksheet, type say the seasons in Pakistan and select the list. Click the file tab and in the menu, click option. The Excel options dialog box appear. सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास टैब्स कहाँ पर मौजूद होते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आप लोग के पास जो एक्सेल की मेन विंडो है वो हम प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे कि किस तरह से उसमें टैब्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। टॉप पर आपके पास एक्सेल वर्कशीट के क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। आपके पास एक बार अवेलेबल होती है जो है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपके पास मौजूद होते हैं टैब्स, जैसा कि होम टैब, फाइल टैब, डिजाइन टैब एंड सो ऑन। टैब्स के अंदर आपके पास नीचे मौजूद होते हैं रिबन्स और रिबन्स जो आपके होते हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं। रिबन्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले आपके पास क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे टैब्स मौजूद हैं। टैब्स के अंदर आपके पास रिबन्स होते हैं और रिबन्स आपके डिवाइड हो रहे होते हैं ग्रुप्स में। डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं आपके, वो हम प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे कि किस तरह से ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सब आपको कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो एक टैब है फाइल टैब में आप लोग जाएंगे और इसके अंदर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद आप उसके अंदर अपनी लिस्ट जो भी है, अगर आप सब्जेक्ट की लिस्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट की लिस्ट मेंटेन करेंगे आप लोग। उसके अंदर वट एवर यू वॉन्ट टू फिट इन आप उसके अंदर फिट करेंगे और क्या कर लेंगे, अपनी कस्टम लिस्ट खुद से क्रिएट करेंगे। उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स की लिस्ट क्रिएट करी, मैंने उसमें लिखा ICT, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ICT, मैथ्स, साइंस एंड सो ऑन। देन जब मैं यहाँ पर
अपनी एक्सेल वर्कशीट के फॉर एग्जांपल सेल नंबर C1 के अंदर पुट करती हूँ ICT, देन मैं वही करूँगी कि सेल को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग डाउन करूँगी। ड्रैग डाउन करने के बाद जब मैं रिलीज करूँगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए आ जाएंगे। ये आपकी अपनी ओन लिस्ट है, ओन कस्टम लिस्ट। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 31. The custom list dialog box appear. Verify that the cell range of the list of items that you selected gets filled in the import list from cell text box. यहाँ पर आपको पूरा मेथड बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपनी कस्टम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। Open page number 32. Edit or delete a custom list. You can also edit or delete custom list. To edit the list, make change in the list entries box and then click add. To delete the list, click the delete button. A message box appear with a warning. Click OK. आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कस्टम लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हो और इसमें चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग चाह रहे हो, अभी आपने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स लिखे हैं एंड आई वांट यहाँ पर और सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाएं, तो उसको आप इजीली ऐड भी कर सकते हो और इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लैश फिल. Flash fill feature is a new feature in Excel 2013. It recognizes the data fill pattern in a worksheet and fills the remaining series accordingly. Flash fill feature आप किस तरह से देखेंगे, एग्जाम्पल है आप लोग की यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने लिखा लास्ट नेम, यहाँ पे आपने लिखा मिडिल नेम, और एंड में आप लिखना चाह रहे हैं फुल नेम। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा नाइल, लास्ट नेम लिखा खान और मिडिल नेम लिखा ए। यहाँ पे है सबीन खान सी। अब आप यहाँ पे फुल नेम लिखना चाह रहे हैं तो फ्लैश फिल को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर पहले सेल्स में पूरा नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम में लिखना चाह रही हूँ, जो फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम से मिलके बनेगा नाइल ए खान। देन अगर मैं यहाँ सेकंड वाला भी इसी तरह से पूरा नेम टाइप करूंगी तो ये लिखने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बट जैसे मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद टाइपिंग स्टार्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एस जैसी ही टाइप किया तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ऑप्शन देगा पूरा नाम जिसे लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी वो ऊपर वाली सीक्वेंस को फॉलो करेगा। जो टॉप वाला आपका सेल है सेल D2, उसकी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो क्या करेगा, आपके पास क्या करेगा, खुद ही सजेशन देगा आपको इस फुल नेम की, और आप क्या करोगे, सजेशन को एक्सेप्ट कर लोगे ओके को क्लिक करके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला नेम भी इसके अंदर फुल नेम फिल हो जाएगा। ये डेटा पे आपके लिए कब बेहतर है कि जब आप लॉन्ग डेटा पे वर्क करते हैं। ऑन पेज नंबर 32, to understand flash fill, consider a worksheet shown in figure consisting of last name, first name, middle name and full name. The full name column should have data that is a combination of first name, the middle name and the last name. Enter Sabeen C Chaudhary in cell D2. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी ये आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, आप इसे बुक में पेज नंबर 32 पर भी चेक कर सकते हैं। आपके पास ये टेबल पूरा बना हुआ है जो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लैश फिल फीचर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। The third feature of Excel is sorting. Sorting is on Microsoft Excel most useful feature is the ability to sort data. Sorting rearrange data which may be textual,
numerical और अल्फा न्यूमेरिकल मिक्स लेटर्स एंड नंबर्स इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। सॉर्टिंग आपका क्या करता है, आपके डेटा को रीअरेंज कर देता है, चाहे वो डेटा आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल यानी आपके नंबर्स फॉर्म में हो, चाहे आपके लेटर्स हो, अल्फाबेटिकल लेटर्स, नेम, प्लेस एटसेट्रा, चाहे आपका अल्फा न्यूमेरिकल हो यानी कि नंबर्स और लेटर मिक्स जो आपके होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल, वो आपके डेटा को किसी भी स्पेसिफाइड ऑर्डर में क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। दिस फीचर आर कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपके पास दो तरह की होती है, वन कॉलम सॉर्टिंग एंड मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। One column sorting, consider a table of employees with their department numbers and salaries. In this example, we will use sorting to arrange the data in the ascending order of salary. आपके पास पेज नंबर 32 में एक डेटा शीट बनी हुई है एक्सेल की, उसके अंदर डिफरेंट आपके पास डेटा मौजूद है जैसा कि एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, यहाँ पर सैलरी को वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना चाह रहे हैं, रीअरेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है, जो आपके पास 1 से लेके 10 तक, यानी कि जो नंबर्स आपके स्मॉलेस्ट नंबर से लेके आपके ग्रेटेस्ट नंबर तक जा रहा होता है, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म होती है आपकी। तो आपकी सैलरी को ये असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे हम, select the cell in the column according to which you want to sort the data. For example, आपका जो भी एक सेल है उसके अंदर जो सैलरीज आपकी लिखी हुई है, एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट सैलरीज लिखी हुई है, उसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में ले जाने के लिए आपको उस पूरे कॉलम को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। The command of sorting is available at 2 places in Excel. जो सॉर्टिंग की कमांड है, सिमिलरली सॉर्टिंग और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की कमांड आपके पास 2 जगह अवेलेबल होती है एक्सेल वर्कशीट में। पहली आपके पास कहाँ है, क्लिक द होम टैब। जैसा कि मैंने आपको बताया टैब्स आपके अवेलेबल होते हैं एक्सेल वर्कशीट में, आपने होम टैब को क्लिक करना है। इन द एडिटिंग ग्रुप आपके पास कहाँ आते हैं, रिबन्स के अंदर आपके पास ग्रुप आते हैं। क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन, वहां पर आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर बटन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी ड्रॉप डाउन। क्लिक सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में उसको मेंटेन करना चाह रहे हो, तो असेंडिंग ऑर्डर के क्या होते हैं आपके पास, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे आपने क्लिक करना है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 10 से 1, ठीक है, 10 से 1 के लिए क्या करेंगे आप, 10 to 1 आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। सिमिलरली 1 to 10 आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। आप अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना चाह रहे हो, कौन से डेटा को, सैलरीज को, जो कि आपके पास अवेलेबल है पेज नंबर 33 में। इसके आपके पास कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है, वो आप अपनी बुक ओपन करके इसे चेक कर सकते हैं। The same commands are also available on the data tab in the sort and filter group. जैसा कि I have already told कि आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं एक्सेल वर्कशीट में, कहाँ जाने के लिए, सॉर्ट के लिए और फिल्टर के लिए। पहला ऑप्शन आपका कहाँ है, होम टैब के अंदर मौजूद है। सेकंड ऑप्शन आपका कहाँ है, सेकंड ऑप्शन आपके डेटा टैब के अंदर अवेलेबल है। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी चेक करेंगे। Click the ascending order option using either of the 2 ways and the worksheet will be stored in the ascending order of salary. इसका क्या मेथड है, आपने अपने जो भी आपका सेल है, पर्टिकुलर सेल है जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करना चाह रहे हो, आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करोगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाओगे। होम टैब में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सॉर्ट एंड फिल्टर का, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अपीयर होगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ऑप्शंस आपके आ रहे होंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट,
यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर, एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपने असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है पर्टिकुलर सेल का वो आपका अरेंज हो जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। सेकेंड इज मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। अभी तो हमने जो पढ़ा वो एक कॉलम सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा, यानी कि आप एक सेल में एक कॉलम में सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, वन कॉलम सॉर्टिंग। मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग यानी कि मल्टीपल सेल्स में आप लोग, फॉर एग्जांपल ये पूरे आपका जो है कॉलम ए और कॉलम बी, यानी कि आपके टू कॉलम्स हो गए ना, टू पर्टिकुलर कॉलम्स हो गई आपके, और आप चाह रहे हैं कि आप दो कॉलम्स में सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंट मेथड होगा हमारे पास, क्योंकि आपका फर्स्ट कॉलम जो है आप चाह रहे हो उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करो, और सेकंड में आप चाह रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करो। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास वन कॉलम सॉर्टिंग में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग के ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। उसका क्या मेथड है, Suppose we want the list of employees in descending order of salaries in each department of given data. Following manner should be followed. Select range A1 to D11 or select any cell in the table. Click the home tab in the editing group. Click sort and filter and select custom sort. आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टम सॉर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। The sort dialog box appear. Excel assume you have header row, meaning that the first row of the table consisting of column headings. So the option my data has header is already selected. If you don't have a header row, you have deselected it. Under column select department number. For sort by, under sort on, select values, and under order select smallest to largest. Therefore, the data will first be sorted in the ascending order of department number. Click add level to create an additional sorting level. These are the method of creating multiple column sorting and doing multiple column sorting. Under column select salary and under order select largest to smallest. कॉलम आपके पास जो है टैब्स के अंदर मौजूद है, उसके अंदर आप किस में क्लिक करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि आप चाह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना अपने सेल को, तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। द डेटा गेट्स रीअरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग में आप क्या करना चाह रहे हो, एक कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरे कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपके पास पूरा मेथड अवेलेबल है मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग का। नाउ मूव ऑन द पेज नंबर 37। द फोर्थ फीचर ऑफ एक्सेल इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग फीचर सेलेक्टिवली ब्लॉक्स और हाइड्स द डेटा यू डोंट वांट टू सी। फिल्टर के जरिए से आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो वो डेटा जो आप नहीं चाहते देखना। अब फिल्टर रेंज डिस्प्लेस ओनली द rows columns that meet the condition or criteria you specify. Filter is a quick and easy way to find and work with selected data. Filter आपके पास एक इस तरह का मेथड है जिसमें आप अपने सिलेक्टेड डेटा पे वर्क कर सकते हो। अनलाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग डज नॉट रीअरेंज डेटा। सॉर्टिंग का आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रीअरेंज करते हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्डर की फॉर्म में। बट फिल्टरिंग के जरिए से हम क्या नहीं, हम अपने डेटा को रीअरेंज नहीं करते, जस्ट उसको ब्लॉक करते हैं और अपने डेटा को जस्ट हाइड करते हैं। इट टेम्परेरी हाइड्स द रॉ कॉलम यू डोंट वांट। टेम्परेरी हाइड करता है फिल्टर, आपके पास डेटा को टेम्परेरी तौर पे हाइड करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके डेटा जो है वो परमानेंटली हाइड हो जाए, परमानेंटली ब्लॉक हो जाए। आप टेम्परेरी तौर पे अपने डेटा पे वर्क करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैं अपने कॉलम नंबर ए पर, कॉलम जो आपका ए है इस पर मैं वर्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8। बट बाय मिस्टेकली क्या हो रहा है, मैं जो हम बाय मिस्टेकली सिलेक्ट कर रही हूँ अपना कॉलम बी, जिसके ज़रिए से क्या हो रहा है, मेरे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो मैं फिलहाल क्या कर दूंगी, अपने कॉलम बी जो है उसको सिलेक्टिवली हाइड कर दूंगी बाय यूजिंग फिल्टर। फिल्टर को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, इंटर द डेटा एज शोन। जो आपका डेटा है जो आप पुट करना चाह रहे हो अपनी एक्सेल वर्कशीट में, आप अपने डेटा को पुट करोगे।
इंटर द डेटा एज शोन एंड सिलेक्ट द रॉस, क्लिक द होम टैब। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है टैब्स आपके पास कहाँ मौजूद होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास टैब्स मौजूद होते हैं। तो आप होम टैब में क्लिक करोगे इन द एडिटिंग ग्रुप। टैब्स के अंदर आपके पास कहाँ क्या होते हैं, रिबन्स होते हैं, रिबन्स डिवाइड हो रहे होते हैं आपके ग्रुप्स में। एडिटिंग ग्रुप को क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर एंड सिलेक्ट फिल्टर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसा आपने पहले पढ़ा सॉर्ट, तो सॉर्ट के साथ ही फिल्टर का ऑप्शन आपके पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। इसी तरह जिस तरह सॉर्ट के आपके पास 2 मेथड्स हैं एक्सेल वर्कशीट पे अप्लाई करने के, इसी तरह से फिल्टर पिक के भी 2 मेथड्स हैं आपके पास एक्सेल वर्कशीट में अप्लाई करने के लिए। क्लिक द डेटा टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, क्लिक द फिल्टर बटन। डेटा टैब पे भी ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया जिसके जरिए से आप क्या कर रहे हो, होम टैब पे क्लिक कर रहे हो। होम टैब में क्लिक करना आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड इज डेटा टैब। डेटा टैब में क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे, क्लिक द फिल्टर बटन। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट ईच कॉलम हेडिंग, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो फॉर ईयर एंड यू विल बी प्रेजेंटेड विद वेरियस ऑप्शन। और आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। इनिशियली सिलेक्ट ऑल द टिकट, deselected select all, select any number in the drop down menu, say 2010 and click OK. The row containing 2010 in the year field will be displayed. आप लोग चाह रहे हो कि आपका जो ईयर 2010 वाले जितने भी आपके सेल्स हैं वो हाइड हो जाएं, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे सबको और क्या करोगे, 2010 लिखने के बाद उस पर टिक कर दोगे। यानी कि इस तरह से टिक कर देंगे। आपके पास जो ऑप्शंस होंगे डिफरेंट टाइप के, जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करेंगे, आप टिक करेंगे तो क्या होगा, जो आपके पर्टिकुलर सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और हाइड हो जाएंगे। और टेम्परेरी तौर पे ऐसा होगा, परमानेंटली नहीं होगा। टू डिटरमाइन वेदर अ फिल्टर हैज बीन अप्लाइड टू डेटा इन अ वर्कशीट, लुक एट द आइकन इन द कॉलम हेडिंग। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो, एक सिंबल आपके पास यहाँ बना हुआ है, जो सिंबल इस तरह के स्क्वायर बॉक्स के अंदर मौजूद है। एक ड्रॉप डाउन एरो यानी ट्राइंगल जो है वो अपोजिट फॉर्म में है। ट्राइंगल अपोजिट फॉर्म में क्या कहलाएगा, ये आपका ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन आपके पास एक सिंबल है। इस तरह का सिंबल अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो इसका क्या मतलब है, फिल्टर इज इनेबल बट नॉट अप्लाइड। यानी कि आपका फिल्टर अभी अप्लाई नहीं हुआ है, आप उसे अप्लाई कर सकते हो, वो इनेबल है। सेकंड सिंबल इज, अगर आपके पास इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में एक इस तरह का सिंबल मौजूद हो और उसके साथ ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ हो, तो दिस सिंबल्स मीन इज फिल्टर इज अप्लाइड। ये 2 तरह के आपके पास सिंबल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। पहले सिंबल का क्या मतलब है, ड्रॉप डाउन एरो। ड्रॉप डाउन एरो जो कि ये हमें शो करता है कि आपका फिल्टर इनेबल है बट अप्लाई नहीं हुआ हुआ। सेकंड सिंबल शो करता है कि आपका फिल्टर अप्लाई हुआ हुआ है। और ये सिंबल्स आपके पास वर्कशीट में कहाँ अवेलेबल होते हैं, जो आपका कॉलम है, कॉलम के लोअर राइट कॉर्नर पे अवेलेबल होते हैं ये आपके पास ऑप्शंस। द फिल्टर बटन मीन्स, ये वाला जो फिल्टर बटन है इसका मीन क्या है, फिल्टर इज अप्लाइड व्हेन यू ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर दिस आइकन, द फिल्टर क्राइटेरिया इज डिस्प्लेड एज अ स्क्रीन टिप। यानी कि जब आप ये वाला ऑप्शन आपके पास आपके कॉलम्स में आ रहा होगा, जब आप यहाँ पे अपना कर्सर, माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो शो कर देगा कि इस पे कौन सा फिल्टर अप्लाई हुआ हुआ है। यानी कि आप अपने डेटा को हाइड कर रहे हैं, आप अपने डेटा को ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी आपने कंडीशन अप्लाई की हुई है वो यहाँ पर क्या होगी, शो हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू रिमूव द फिल्टर क्राइटेरिया डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने अपना फिल्टर अप्लाई कर दिया लेकिन आप चाह रहे हो कि अपने फिल्टर को रिमूव करो, तो इजीली आप अपने फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिल्टर आप टेम्परेरी तौर पे अप्लाई करते हैं, परमानेंटली नहीं होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव भी कर सकते हो। सिलेक्ट सेल इन द सॉर्ट एंड फिल्टर मेन्यू और क्लिक क्लियर इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। जिस तरह से आपने फिल्टर को अप्लाई किया होम टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के अंदर, इसी तरह से आप जाओगे होम एंड टैब के
ऑप्शन में वहां अवेलेबल होगा सॉर्ट एंड फिल्टर, देन वहां पे क्या कर दोगे क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी फिल्टर आपने अप्लाई किया है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू एयर एंड सिलेक्ट क्लियर फिल्टर फॉर्म एंड सिलेक्ट ऑल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सेकेंड हेडिंग इज कस्टम फिल्टरिंग। आप अपने इस फिल्टर को कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम का मतलब ये होता है जिस तरह से कस्टम लिस्ट थी आपके पास ऑटोफिल के ऑप्शन में, इसी तरह से कस्टम फिल्टर भी है। कस्टम फिल्टर आप अपनी मर्जी से अपनी कंडीशन के मुताबिक भी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने डेटा पे इस तरह का फिल्टर अप्लाई करूँ जिससे हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाए, उसमें कोई ना कोई कलर अप्लाई हो जाए, या हाईएस्ट टू लोअर वैल्यू वाली रो जो है वो हाइड हो जाए। तो ये क्या होगा, ये मेरी अपनी कस्टम फिल्टरिंग होगी, मैं इसको भी अप्लाई कर सकती हूँ। सच एज इक्वल, डज नॉट इक्वल एंड ग्रेटर साइन एटसेट्रा विच वी आर रिक्वायर्ड, वी आर डूइंग इजली बाय यूजिंग कस्टम फिल्टरिंग। फिल्टरिंग को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, फिल्टरिंग को हम ब्लॉक और हाइट के लिए यूज कर रहे हैं, सेम इसी तरह से हम सर्च डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो ए वाला कॉलम है, उस कॉलम के अंदर मैं चाह रही हूँ कि जितने भी ए से स्टार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि जो 6 वाले नंबर्स हैं वो मुझे जितने भी 6 स्टार्टिंग नंबर्स हैं वो मेरे पास शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फिल्टर अप्लाई करूँगी। अपने कॉलम ए पे फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये रिक्वायरमेंट लगाऊंगी कि जितने भी मेरे पास नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं वो शो हो जाए। तो क्या होगा, मेरा डेटा भी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, फाइंड कर सकती हूँ इजिली। Now move on the page number 41, that is conditional formatting. Conditional formatting is a feature that allows you to set a cells format according to the condition you specify. Conditional formatting भी एक आपके पास एक्सेल के अंदर फीचर है जिसके ज़रिए से आप अपने सेल्स के फॉर्मेट को सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अपनी कंडीशन के मुताबिक अपने सेट्स के फॉर्मेट को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है इसकी, यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू कैन अप्लाई नंबर्स इन अ पर्टिकुलर कलर डिपेंडिंग ऑन वाइदर दे आर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन अ सर्टेन वैल्यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आप चाह रहे हो कि आप डिस्प्ले करो वही नंबर, वही पर्टिकुलर कलर के नंबर, जो पर्टिकुलर कलर के नंबर भी आप क्या कर सकते हो, वो सेट कर सकते हो। इसी तरह से जो ग्रेटर नंबर्स हैं, कोई भी कंडीशन आपने अप्लाई कर दी कि जो 6 से ग्रेटर नंबर है, 6 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं आपकी शीट के अंदर वो आपके पास शो हो जाए। इसी तरह से 6 से लेस जो भी नंबर है वो शो हो जाए। तो ये आपकी अपनी पर्टिकुलर कंडीशन है, ये आप सेट कर सकते हो क्या अप्लाई करके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके। फर्स्ट हेडिंग इज हाईलाइटिंग सिलेक्टेड डेटा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की और आप क्या कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो सिलेक्टेड सेल। कुछ आपने सेल्स सिलेक्ट कर ली हैं, वो आपकी कंडीशन है कि आपने क्या सिलेक्ट किए हैं, यानी कि ग्रेटर वाले किए हैं, स्मॉल वाले किए हैं, कलर वाले किए हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। ये भी आप क्या कर सकते हो, इजिली कर सकते हो बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास कहाँ अवेलेबल है, होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में। सबसे पहले आपका टैब्स होता है, टैब्स के अंदर आपके पास रिबन्स और ग्रुप्स होते हैं। तो कौन सा टैब है आपका, होम टैब है। होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, जहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सिमिलरली जिस तरह से आप अपनी फिल्टरिंग को भी कस्टम कर रहे हो, उस तरह से आप सॉर्टिंग भी कस्टम कर सकते हो। कस्टम ऑटो फिल भी आपने किया, कस्टम फ्लैश फिल भी आपने किया, कस्टम सॉर्टिंग और कस्टम फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें आप अपनी कंडीशन के मुताबिक सेट कर सकते हो। नाउ ओपन योर पेज 46। ट्रिकी टर्म्स इज फिल हैंडल। फिल हैंडल आपके पास क्या है, अ स्मॉल ब्लैक स्क्वायर इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। ये आपने सेल सिलेक्ट किया है, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो एक पॉजिटिव साइन शो हो रहा है वो साइन आपका फिल हैंडल कहलाता है, जो कि हमने ऑटो फिल में पढ़ा था।
Autofill is a feature that lets you quickly fill in a predefined list or an arithmetic series. Custom list आपके पास क्या है, एक predefined list है. Autofill आपके पास किस तरह का फीचर है जिसमें आप अपनी रिमेनिंग सेट्स को फिल कर सकते हो किसी भी प्री डिफाइंड लिस्ट के जरिए से या किसी भी अर्थमेटिक सीरीज के जरिए से. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी इवन नंबर की 2, 4, 6, 8, ये आपके पास क्या है, एक अर्थमेटिक सीरीज है. तो आप अर्थमेटिक सीरीज को भी फिल कर सकते हो अपने इनक्लोज सेल में. ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, ऑटोफिल फीचर के थ्रू. कस्टम लिस्ट क्या है, एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज टेक्स्ट एंट्रीज दैट यू कैन इंटर क्विकली थ्रू ऑटोफिल. कस्टम लिस्ट आपके पास क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है और क्या कर सकते हो आप इसको डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन. फ्लैश फिल इज अ फीचर दैट रिकॉग्नाइजेस द डेटा पैटर्न एंड फिल्स द डेटा सीरीज इन अ कॉलम. फ्लैश फिल आपके पास क्या है, फ्लैश फिल भी आपके पास ऑटोफिल की तरह का एक फीचर है, बट इसमें आप किस तरह से वर्क कर सकते हो, आप इसमें रॉ के थ्रू वर्क करते हो. यानी इसमें आपके कॉलम फिल्स नहीं होते, ऑटोमेटिकली आपकी रॉस फिल होती हैं. जैसा कि आपको एग्जांपल दी थी नेम्स वाली, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फुल नेम वाली मैंने एग्जांपल दी थी, जिसमें आप क्या कर रहे थे, अपनी पूरे के पूरे कॉलम को अपने पूरे के पूरे लिस्ट को आप क्या कर रहे थे, सेट कर रहे थे. तो ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, फ्लैश फिल के थ्रू. सॉर्टिंग इज रीअरेंजिंग द डेटा इन अ सेल इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर. सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग रीअरेंजिंग करता है आपके डेटा को. फिल्टरिंग टू डिस्प्ले ओनली द रॉस कॉलम दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन और क्राइटेरिया. फिल्टरिंग डिस्प्ले करता है रॉ या फिर कॉलम जो आपकी कंडीशन पे स्पेसिफिक कंडीशन पे अप्लाई करते हैं आप फिल्टरिंग को. कस्टम फिल्टरिंग टू यूज कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया टू फिल्टर डेटा. कस्टम फिल्टरिंग आपका सिंपल क्राइटेरिया पे अप्लाई नहीं होता, आपके अपने ओन क्राइटेरिया पे वर्क करता है, क्रिटिकल क्राइटेरिया पे वर्क करता है. वो आपका क्या कहलाता है, कस्टम फिल्टरिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेटिंग सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूजर. कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको मालूम है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप उस पर अप्लाई करते हो. Now the next is memory byte. The autofill feature lets you quickly enter and predefined series of data. यहाँ पर फिर से autofill की फीचर के बारे में बताया हुआ है, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिल कर देता है आपके predefined डेटा को. There are two ways of creating custom list. कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के, यानी जो आपके ऑटोफिल की कस्टम लिस्ट है वो क्रिएट करने के आपके पास दो मेथड है. एक मेथड है बाय एंटरिंग द लिस्ट आइटम्स, आप अपने लिस्ट आइटम्स को इंटर कर दो, या फिर आप टाइप करो. सॉर्टिंग अलाउज द यूजर टू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सॉर्टिंग अलाउ करता है आपके डेटा को किसी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लाने के लिए. फिल्टरिंग सिलेक्टिवली डिस्प्ले रॉ कॉलम दैट मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द यूजर. फिल्टर क्या करता है, डिस्प्ले करता है आपकी रॉ एंड कॉलम को जो आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन पे वर्क कर रहा हो. कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउज यू टू सेट अ सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू स्पेसिफाई. यू कैन कॉपी द कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेटिंग टू अदर सेल्स यूजिंग द फॉर्मेट प्रिंटर टूल. यानी कि आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो भी आपने सेटिंग की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी क्या है, आप उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी कंडीशन अप्लाई करते हो. अब आप चाह रहे हो कि आप अपनी कंडीशन को किसी और जगह पर सेव कर लो या सेट कर लो, तो आप वो किसके थ्रू कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर टूल के थ्रू आप ये काम भी कर सकते हो. नाउ स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए है. दिस फीचर रिकॉग्नाइजेस द डेटा पैटर्न इन अ वर्कशीट एंड फिल द सीरीज अकॉर्डिंगली. वो कौन सा फीचर है जो आपके डेटा पैटर्न को, जो आपके वर्कशीट के डेटा पैटर्न को फिल कर देता है विद अ सीरीज. कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑटोफिल, फ्लैश फिल, कस्टम फिल या कॉपी. तो करेक्ट आंसर है आपका पार्ट 2, दैट इज फ्लैश फिल. द फिल्टर बटन, ये वाला फिल्टर बटन, ये सैम्पल आपके पास बुक में बना हुआ है. द फिल्टर बटन मीन्स फिल्टर इज अप्लाइड. ऑप्शंस अवेलेबल है, फिल्टर इज अप्लाइड, फिल्टर इज इनेबल बट नॉट अप्लाइड, फिल्टर इज डिसेबल्ड, नन ऑफ दीज.
तो करेक्ट आंसर इज फिल्टर इज अप्लाइड, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है। इस सैंपल का मतलब है फिल्टर इज अप्लाइड। करेक्ट ऑप्शन इज ए। पार्ट सी इज टू रिमूव फिल्टर। फिल्टर को रिमूव करने के लिए आपके पास क्या कर सकते हो आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिल्टर अप्लाई करने के 2 मेथड हैं, तो इसी तरह से फिल्टर को रिमूव करने के भी 2 मेथड्स होंगे। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है क्लिक द फिल्टर ऑप्शन ऑफ द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर आपके सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आप जाके उसको रिमूव कर सकते हो फिल्टर को। देन सेकंड इज क्लिक द फिल्टर ऑप्शन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर जाकर फिल्टर ऑप्शन में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करके भी रिमूव कर सकते हो। थर्ड इज बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट हैं, या फिर प्रेस डिलीट। सिंपल आपने अपने कीबोर्ड के जरिए से डिलीट प्रेस किया और आपका जो आपने फिल्टर अप्लाई किया है वो रिमूव हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका पार्ट 3, दैट इज बोथ ए एंड बी। जिस तरह फिल्टर को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, रिमूव करने के भी 2 तरीके हैं, होम टैब में जाकर एंड डेटा टैब में जाकर। डी इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन इज अवेलेबल इन द डैश ग्रुप ऑन द होम टैब। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो भी ऑप्शन है आपका वो कहाँ अवेलेबल है, होम टैब के स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप तो करेक्ट ऑप्शन है आपका पार्ट सी, यानी कि स्टाइल ग्रुप। When you bring the mouse pointer over a small black square in the lower right corner of the active cell, it changes to a dash sign. जब आप अपने सेल को सिलेक्ट करते हो और ड्रैग डाउन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ऑटोफिल, जब हम ऑटोफिल पढ़ रहे थे तो यहाँ पर किस तरह का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, पॉजिटिव साइन में प्लस का ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 4, दैट इज प्लस। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आप लोग के। पार्ट इज एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट क्रिएट करने का कोई एक मेथड बताइए। जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको कंटेंट सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल जाएंगे। पार्ट ए में आपसे पूछा जा रहा है एक मेथड बताइए कस्टम लिस्ट को क्रिएट करने का। तो इसका आंसर है आपके पास यू कैन ऐड अ कस्टम लिस्ट बाय इंपोर्टिंग अ लिस्ट। 2 मेथड से पहला आपने क्या कर रहे थे, आप इंपोर्ट करने के थ्रू भी कर सकते हो ये काम। सेकंड आप टाइप करके भी ये काम कर सकते हो। तो एक मेथड आपको यहाँ पर बताना है इस सवाल के आंसर में। तो क्या करोगे, आपका फर्स्ट मेथड इज इंपोर्टिंग अ लिस्ट। इंपोर्टिंग लिस्ट के थ्रू आप कर सकते हो। वो काम कैसे करोगे आप, ऑन द वर्कशीट पे टाइप द डेटा एंड सिलेक्ट द लिस्ट। जो भी डेटा आपने टाइप करना है वो वाला डेटा आप यहाँ पर पुट करोगे अपनी एक्सेल की वर्कशीट में, और क्या करोगे, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑप्शन। जो टैब्स हैं आपके फाइल टैब में जाकर क्लिक करोगे ऑप्शंस पे, क्लिक एडवांस एंड देन अंडर जर्नल क्लिक द एडिट कस्टम लिस्ट बटन। कस्टम लिस्ट बटन पे क्लिक करोगे, वेरीफाई दैट द सेल रेफरेंस ऑफ द लिस्ट दैट यू सिलेक्टेड get filled in the import list from cells text box and then click import the entire list, get edit the list and custom list boxes, then click OK। पूरा यहाँ पर मेथड बताया गया कस्टम लिस्ट को क्रिएट करने का। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी चेक करेंगे। पार्ट बी इज हाउ विल यू डिस्प्ले ओनली दोज रोज इन विच द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 500। किस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हो खाली वही रॉस जिसमें आपके एक वर्कशीट है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट के फीस स्ट्रक्चर ये सारा आपके पास डेटा अवेलेबल है और आपको सिर्फ वही वाला डेटा डिस्प्ले करना है जिसमें आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो 500 से। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो, इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपको एक सेलेक्टिवली डेटा को सिलेक्ट करना होता है और हाइड करना होता है तो आप क्या अप्लाई करते हो, फिल्टर अप्लाई करते हो। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, फिल्टर अप्लाई करोगे। बट फिल्टर कौन सा अप्लाई होगा, कस्टम लिस्ट, क्योंकि ये हमारे अपनी ओन लिस्ट है ना, कि हम उसमें चाह रहे हैं कि हम वही वाला डेटा सिलेक्ट करें जिसमें 500 से ज़्यादा ग्रेटर नंबर हो, 500 से ग्रेटर और लेस नंबर हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कस्टम फिल्टरिंग को अप्लाई करोगे। कस्टम फिल्टरिंग अप्लाई करने का मेथड है आपके पास पॉइंट टू नंबर फिल्टर इन द ऑटो फिल्टर, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द कॉलम मार्क,
choose greater than. Click custom filter to display only those rows where the data is greater than 500. Fill the value in the dialog box, then click OK. Part C is evaluate the importance of the various feature of the fill command in Excel. आपने evaluate करनी है डिफरेंट टाइप के जो आपके फीचर्स हैं, कौन से वाले फीचर्स तो आपके पास 4 टाइप के, बट आपने फिल वाले जो आपके एंड में फिल आ रहा है जिन फीचर्स के, उन वाले फीचर्स को आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है. सो आंसर इज द फीचर ऑफ फिल कमांड इज ऑटो फिल एंड फ्लैश फिल. फिल कमांड के फीचर क्या है आपके पास है, ऑटो फिल है और फ्लैश फिल है. द ऑटो फिल फीचर अलाउ द यूजर टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स विद अ सीरीज ऑफ डेटा विदाउट एक्चुअल टाइपिंग इन इट. ऑटो फिल के अंदर आप क्या करते हो, अपने डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देते हो विदाउट टाइपिंग. Similarly, the flash fill feature recognizes the data fill pattern in a worksheet and fills the remaining series accordingly. Part D is Zed's father owns a mobile phone shop. He has asked Zed to help him maintain the record of all his customers in an Excel worksheet. Zed के फादर की एक अपनी मोबाइल फ़ोन शॉप है और उन्होंने Zed से कहा है कि वो उनकी हेल्प करे उनको मेंटेन करना है रिकॉर्ड अपने कस्टमर्स का वर्कशीट में. ठीक है. नाउ ही वांट्स ज़ैड टू चेक द डिटेल ऑफ अली मुर्तज़ा. ज़ैद के फादर के कस्टमर हैं अली मुर्तज़ा. उन्होंने ज़ैद से कहा कि चेक करो डिटेल अली मुर्तज़ा की. एन ओल्ड कस्टमर, वो उनके पुराने कस्टमर है. इन हिज रिकॉर्ड विच ऑफ दीज 2 ऑप्शन शुड ज़ैद यूज फॉर दिस. कौन से 2 ऑप्शन ज़ैद को चूज करने चाहिए ये काम करने के लिए. अगेन बता देती हूँ, यानी ज़ैद के फादर की एक शॉप है और वो चाह रहे हैं कि अली मुर्तज़ा जो उनके एक पुराने कस्टमर है उनका रिकॉर्ड चेक करें. तो ज़ैद को ये चेक करने के लिए कौन से ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए ये आपने इसका रीज़न भी बताना है. आपके पास 2 ऑप्शंस कौन से बताए हुए हैं, फिल्टर और सॉर्ट, यानी कि उसे फिल्टर अप्लाई करना चाहिए या उससे सॉर्ट अप्लाई करना चाहिए और हमें इसका रीज़न भी देना है. यहाँ पर क्या है, अली मुर्तज़ा उनके कस्टमर है, उनको जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, यानी ज़ैद को जस्ट अली मुर्तज़ा को सिलेक्ट करना है. तो उसके लिए फ़िल्टर बेहतर होगा, क्योंकि फ़िल्टर आपका क्या करता है, आपके डेटा को सर्च भी करता है और आपके डेटा को हाइड और सिलेक्ट भी करता है. तो इसके लिए क्या होगा, फ़िल्टर आपका बेहतर ऑप्शन है. सॉर्ट में आप क्या करते हो, सॉर्ट में जस्ट आप अपने डेटा को रीअरेंज करते हो. तो ज़ैद को अप्लाई करना है यहाँ पर फिल्टर. Filter would be the best option because Zed can apply the filter to the column containing the last name and then filter out the ones that are not required. Part E is create an Excel worksheet to record data collected from your fellow students. आपने एक वर्कशीट क्रिएट करनी है जिसमें क्या हो, आपका जो भी फ्रेंड्स हैं यानी आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पता कीजिए कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, उनका फेवरेट एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, फ्लावर कौन सा है और ट्री कौन सा है, और आप उस डेटा को अपनी वर्कशीट में इनपुट करोगे. यही आपका टास्क है. यानी कि आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स की फेवरेट कलर, फेवरेट बर्ड, फेवरेट फ्लावर और फेवरेट एनिमल और फेवरेट ट्री का नाम लिखकर एक डेटा मेंटेन करना है. नाउ यूज द अप्रोप्रिएट कमांड्स टू. यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्रोप्रिएट कमांड्स को भी यूज करना है. फर्स्ट कमांड इज सॉर्ट ईच लिस्ट अल्फाबेटिकली. आपकी जो लिस्ट आप मेंटेन करोगे वो सॉर्ट होनी चाहिए अल्फाबेटिकली. अप्लाई द कलर रेड टू ऑल द सेल्स वेयर मोर देन 3 students have the same favorite. Filter those cells where the data begins with the letter M. अप्लाई करना है यहाँ पर रेड कलर. ठीक है. थर्ड इज फिल्टर करना है आपने वो सेल्स को जो आपके स्टार्ट हो रहे हो M से. ठीक है. तो ये वाला काम आप किस तरह से कर सकते हो, आपने इसका ख्याल रखना है कि आपका सॉर्ट कमांड आपने यूज़ करना है. पहले टास्क में सॉर्ट कमांड शुड हैव बीन यूज्ड करेक्टली, will require filtering and then applying the red color, should apply the filter command using the text filter,
being with. On this particular page, page number 47, there is also a application based questions. First part is consider a given worksheet and answer the following question. एक वर्कशीट आपके पास राइट में अवेलेबल है जो आपने कंसीडर करनी है और इन ऑप्शंस के आंसर बताने हैं. फर्स्ट पार्ट इज हाउ विल यू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ सेल B2 टू सेल C2 and E4. First, second part is if you select the cell B4 and C4 and drag the auto filter to cell E4, what number will you get the cell D4 and E4? इसको चेक कर लेते हैं. वर्कशीट आपके पास फिगर में अवेलेबल है पेज नंबर 47 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर. यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है 2 and 6. पहला आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आपने इस तरह के फॉर्मेट को किस तरह से कॉपी कर सकते हो. तो इसके लिए आपके पास क्या है करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द सेल B2. आपने अपने सेल B2 को सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पर आप A1 को सिलेक्ट करोगे. सिलेक्ट द सेल A1 एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब के अंदर आपके पास एक ग्रुप अवेलेबल है क्लिपबोर्ड पेंटर का. वहाँ पर जाके क्लिक करोगे और अपने माउस को ड्रैग कर दोगे D1 तक, तो आपके पास इस तरह का फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा. इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करेंगे. सेकंड पार्ट इज अगर आप सिलेक्ट करते हो अपने सेल A2 को और आप उसको ड्रैग कर देते हो D2 तक, तो आपके पास यहाँ जो दो सेल्स हैं यानी C2 और D2 जो है आप लोग का उसमें क्या वैल्यू आएगी. फर्स्ट आपके पास यहाँ 2 है, सेकंड यहाँ पर 6 है, तो यानी इसके बीच में कितना स्टेप आ रहा है आप लोग का 2, 3, 4, 5. 3 का स्टेप आ रहा है आप लोग का. तो इसी तरह से ये नेक्स्ट में भी 3 का स्टेप लेगा. तो इसका यहाँ C2 का आंसर क्या आएगा आपके पास 6, 7, 8, 9. 3 का स्टेप लेने के बाद यहाँ करेक्ट ऑप्शन आंसर आएगा आपका 10. इसी तरह से ये D2 पर भी स्टेप लेगा 3 का, जो कि होगा आपका 11, 12, 13. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 14. यानी जो भी आपने अपनी सीरीज बनाई हुई है उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही ये बाकी सेल्स को फिल करेगा. नाउ मूव ऑन द पेज नंबर 48. पार्ट बी इज कंसीडर अ वर्कशीट शोइंग द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6A एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक वर्कशीट आपके पास गिवन है पेज नंबर 48 पर, जिसमें आपके पास कुछ डेटा अप्लाई हुआ है और आपने उसमें क्या क्या फीचर्स देखने हैं. पार्ट 1 में बताया जा रहा है विच फीचर ऑफ एक्सेल इज शोन बाय द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो इन द कॉलम हेडिंग. फिगर को आप लोग देखिए, फिगर के अंदर एक ऑप्शन आप लोग का अवेलेबल है जो इस तरह से बना हुआ है. ठीक है, ये आपके पास कॉलम्स में ये वाला ऑप्शन बना हुआ है. अब पूछा जा रहा है कि ये कौन सा फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. List the roll number of all records that will be displayed when you click the drop down menu arrow and name and type asterisk in the search box and press enter. Third part is how will you turn off this feature in the worksheet. यानी आपका पहला जो फीचर अप्लाई हो रहा है वो फिल्टर का अप्लाई हो रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन इज फिल्टर. पार्ट बी है आप लोग का, जिसके अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ आप लोगों ने वही वाली रॉस अपेयर होनी चाहिए जो ए स्टेरिक से स्टार्ट हो रही है. यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का फर्स्ट पार्ट इज फिल्टर, सेकंड इज 1001 एंड 1003, 1006 एंड थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से ये जो फिल्टर अप्लाई हुआ है किस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, होम टैब पे जाओगे, यानी होम टैब पे क्लिक करने के बाद
आप जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में, एंड देन अप्लाई कर देंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। जो आप लोग के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। आई होप you all are understand everything. If you have any confusion, so watch this video again and again. Take care. Allah Hafiz.